Hi everyone, good evening and welcome to day 7 of your personality development class. Hi everyone, good evening. Good evening everyone. Hi Himanshi. Oh, there are two Himanshis today. Hi Himanshi. Hi Lucky. Hi everyone. Good evening. Good evening Bharat. Good evening Manorama. Good evening everyone. How are you all? Good evening Kabita. Good evening ma'am. Meghna here. Hi Meghna. Good evening. Good evening. Good evening Shobhana. Good evening Savita. Looking so cute ma'am. Thank you. Thank you. How are you ma'am? I hope you're always fine. Yes Himanshi, I'm absolutely fine. I hope you're also fine and doing absolutely wonderful. Hi Hemant. Ma'am, what is your YouTube name? My YouTube channel's name is Unleash Your Passion. Okay? It's Unleash Your Passion. Good evening Anil. Ma'am, you're looking pretty today. Thank you so much. Good evening ma'am. Good evening Anil. Good evening Sunny. I am Neha. Hi Neha. Good evening. We'll wait for a couple of minutes so that all the students can join in and then we'll start with today's session. Alright? My name is Surya. Hi Surya. I am absolutely great Shobhana. I hope you're absolutely wonderful too. Good evening Mayank. Good evening. Good evening Sangeeta. Today नहीं आप रोज लगते हो. Thank you Himanshi. I'm Jigyasa. Hi Jigyasa. Hi everyone. A hearty good evening to each and every student. Today's session is going to be absolutely amazing and exciting. Okay. Hi Anil. मैम प्लीज़ अपने चैनल का नेम बता दो. माई चैनल्स नेम इज़ अनलीश योर पैशन. कल ही मैंने वहाँ पे एक नई वीडियो डाली है. आई हैव अपलोडेड अ न्यू वीडियो येस्टरडे सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. गुड इवनिंग वरुण. हाई होप योर फैमिली इज़ गुड. येस माई फैमिली इज़ एब्सोल्युटली फाइन. आई एम डूइंग वंडरफुल. आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वंडरफुल. दीपिका. हाई सपना. मैम वैसे मैडम पढ़ाती क्या है? आई टीच पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रिंस. Good evening, Varun. Good evening. Hi, ma'am. I'm Swati. Hi, Swati. Good evening. Ma'am, you're always looking amazing. Yes, I told you. I always look amazing. I try to look amazing because it gives me confidence. Yes, that's a secret of my confidence. Hi, Sunny. Ma'am, my name is Devesh. Hi, Devesh. Good evening. I hope you're doing great. Yes, Unleash Your Passion. Himanshi Goyal has written the spelling of my channel, so you can just go and check it out. I'm Sandeep Yadav. Hi Sandeep. I subscribed your channel. Thank you so much. It really means a lot. You're so beautiful. Thank you so much, Sunny. Everyone is beautiful. I truly believe each and every student of mine is absolutely smart and is absolutely beautiful. Inside out, yeah? You should be beautiful. You should be beautiful inside as well as outside. Outside beauty तो चली जाती है. It fades away with time. It fades away with your age. But your inside beauty is all that matters. Ma'am, are you cut your hair? Ma'am, no, I haven't cut my hair. I have a lot of baby hair, so whenever I just tie my hair like this, so all the baby hair come like this. It forms something like this. So I really like it this way. I have natural bangs. Ma'am, I subscribed your channel yesterday. Thank you so much, Sapna. Hi, ma'am. Good evening. Good evening, Karishma. Hi, ma'am. I'm Sanjana. Hi, Sanjana. Hi. Hi, everyone. We'll wait for 2 minutes more. 2 more minutes and then we'll start with today's session. What is the name of your YouTube channel? My YouTube channel name is Unleash Your Passion. Thank you so much for asking.
हाय श्रुति, हाय नैना, हाय नैना मैडम आप पढ़ाती क्या हो? आई टीच पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को कैसे पॉलिश करते हैं, मैं ये सिखाती हूँ। मैं ABCD और मैथ्स साइंस ये नहीं सिखाती। हेलो मैम, माय नेम इज़ मानसी। हाय मानसी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग कुसुम। हाय कुसुम, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। मैम माय नेम इज़ भूमि, गुड इवनिंग भूमि, गुड इवनिंग। आई एम मेघा, हाय मेघा। Ma'am, my name is Shreyansh. I can see most of the students are quite regular. Are quite regular with the session of personality development, and I am so proud of each and every student who is actually regular since day one. I can actually remember the names now. Ma'am, I am Sandeep Yadav. Hi Sandeep, ma'am, your teaching is very amazing. Ma'am, you are best teacher ever. Thank you ma'am for motivating us. It really means a lot, Sapna. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको बहुत अच्छा लगा कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ. Thank you so much. It really means a lot. Myself, मुद्रिका. I guess मुद्रिका ने भी अपने एक्टिविटीज सबमिट करे थे, right? Hi, I am Ayush. Hi Ayush. Yes ma'am. Meghna. Yes, I can remember the name Meghna, and you are regular. I also know that. Your video is top. Is my video working, kids? Is my video working, kids? Ma'am, I am Megha and regular. I know Megha. You are regular. आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक अभी बताते हैं, अभी बताएंगे आज का टॉपिक भी. Ma'am, my name is Bhumika. Bhumika is also regular, I guess. Yes, I know Megha is regular. मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो. थैंक यू मैम, यू आर द बेस्ट टीचर. थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट. जो अगर मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है तो उससे मेरे से अच्छे तो आप लोग हैं. if you are appreciating me, if you are transmitting your positive thoughts towards me, it really means that you are yourself a wonderful person, because a positive person can only appreciate the other person, right? If you are a negative person, you don't have guts to appreciate the other person. So compliment yourself that yes, I am on a journey. अपने आप को ऐसे टैप करो, pat your back and give yourself that, say to yourself that I am so proud of myself कि I have started being a very positive person, right? Ma'am, you are looking so beautiful. Thank you for the compliments, kids. It really means a lot. Barun, I know you are regular. Naina, I know you are regular. Shreyansh also, I know he is regular. ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करें. Should we start with today's session? YouTube channel एक बार और बताऊं. Unleash your passion. My channel's name is Unleash your passion. ठीक है? Should we start with today's session, kids? Yes, Anil Shekhawat is also regular. Yes. My mother also like you. Wow, wonderful. Thanks, Anil. Thank you so much. Ma'am, I am also regular. So let's start with today's session. It's almost 4:10 right now. We have been live since 8. We have been live since 9 minutes now. I'm so electrified. Yes, I'm also electrified. So let's start with today's session. Okay? So first of all, tell me one thing, students, who all have written an apology letter to their parents or to their grandparents or to their siblings. किसने apology letter लिखा था कल? Who all have written the apology letter? Good evening, good evening, Chanchal. Ma'am, I am also regular. Yes, Bharat, I know you are regular. Everyone, kindly let me know कि आप लोगों ने अपॉलॉजी लेटर लिखा था या नहीं लिखा था. I have written. Wow, Om, wonderful. सिर्फ एक ही ने लिखा और किसी ने नहीं लिखा.
अगर आप ऐसे करोगे फिर तो मिस्ट्री बॉक्स अब नहीं मिलेगा. आई हैव रिटन आई मेघना. यस मेघना, आई गेस यू आर इन 12th स्टैंडर्ड इन रावल इंटरनेशनल स्कूल. मुझे मिल गया था. आई रिसीव्ड योर वो अपॉलॉजी लेटर. इट वॉज वंडरफुल. मैम आई सॉ योर यूट्यूब चैनल, इट इज़ अमेजिंग. थैंक यू. मी. लेकिन इतने सारे मी आते हैं, लेकिन फोटो कहाँ होती है एक्टिविटी की? मेरे पास तो फोटो ही नहीं आती. अब मैं कैसे मान लूँ? आई ट्रस्ट ऑल माई किड्स, आई ट्रस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स, लेकिन अब कैसे पता चलेगा? प्रूफ भी तो होना चाहिए. वी शुड हैव अ प्रूफ दैट इफ समवन आस्क्स मी कि मैम आपके स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी नहीं की, लेकिन मैं आई ऑलवेज से दैट आई नो ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स आर डूइंग द एक्टिविटी, बट आई शुड ऑल्सो हैव समथिंग इन माई हैंड कि मैं बता सकूँ, देखो ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स आर सो punctual and so disciplined that they are actually following everything that their teacher tells. So please, जिन लोगों ने भी अभी तक के जितने भी मिस्ट्री बॉक्सेस की फोटोज नहीं भेजी है, तो प्लीज आज कल सुबह तक सबकी फोटोज मेरे पास आ जानी चाहिए. कल सुबह तक प्लीज मेरे पास सबकी फोटोज आ जानी चाहिए. मैम मैं अभी भेजूंगी, बिल्कुल अभी प्लीज भेजना. मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं देखूं कि मेरे स्टूडेंट्स कितने अटेंटिव है. यस पूनम, आई एम ऑल्सो इलेक्ट्रीफाइड. अगर आप लोग ऐसे करोगे, अगर एक्टिविटी की फोटो नहीं भेजोगे तो पूजा मैम फिर क्लास नहीं लेगी. मैम प्रूफ भेज देंगे, ठीक है? प्रूफ भेज देंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. थैंक यू अनिल फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके मैम. सब लोग चाहते हैं कि पूजा मैम की क्लास हो या ना हो. एवरीबडी वांट्स दैट पूजा मैम शुड टेक आवर क्लास और नॉट. एवरीबडी वांट्स दैट और नॉट, दैट दे वांट टू स्टडी फ्रॉम मी, दैट दे वांट टू लर्न फ्रॉम मी और नॉट. सो everyone kindly send your pictures of your mystery boxes positively by 9 a.m. tomorrow. All right students, ठीक है? समझ आया सबको? Everybody understood what I'm trying to say? Everybody kindly send the pictures of your mystery boxes activity to the number of on which you registered yourself for your summer camp. या अगर खुशबू मैम, अगर अभी आप मेरा लाइव देख रहे हैं तो काइंडली अगर आप नीचे अपना नंबर दे दीजिए कि बच्चे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है? समझ आया सबको? You all want class from me, right? I know everybody wants, but I also want. मैम प्लीज बताना, मैंने 2 बार पूछा है. मेरे चैनल का नाम अनलीश योर पैशन है, ठीक है? श्योर मैम, वी विल सेंड. प्लीज सेंड. आई ट्रस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स. I haven't said any wrong language to my elders. Wow, wonderful. I'm so proud of each and every one. तो अब मैं ये पूछ रही थी, अपॉलॉजी लेटर की भी फोटोज आप प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा. और अपॉलॉजी लेटर के साथ सबने झप्पी करी थी अपने पेरेंट्स को, दादा दादी को, नाना नानी को, सबको झप्पी करी थी. झप्पी को ऐसे कस के करा था या नहीं करा था? करा था या नहीं करा था? ओके, वेरी नाइस. एवरीबडी डिड हाउ आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द एक्टिविटी. मैंने ये नहीं बोला था कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ भेजिए. मैंने ये बोला था जो खुशबू मैम है, who is the head mistress of Raval International School and who is managing the entire Raval Digital Munch, मैंने उनको बोला था अगर मैम आप अभी लाइव देख रहे हैं तो आप अपना नंबर यहाँ दे दीजिए ताकि बच्चों को थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि आपको उस नंबर पे भेजनी है, ठीक है?
इसलिए बोला जाता है ऑलवेज बी अ गुड लिसनर, ऑलवेज बी अ गुड लिसनर. मैं रोज करती हूँ. वेरी गुड. चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. इट्स मोर देन 4:15 राइट नाउ. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. यू आर द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ. ओ माई गॉड, सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच. आई वुड लव टू बी योर टीचर ऑलवेज. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. ठीक है. आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च स्टडीज of a lot of professors and a lot of institutions, and it is the most common problem that the students face when they are in the phase of their adolescence. Adolescence क्या होता है? वो एज जो 10 से 17 साल के बीच वाले जितने भी बच्चे होते हैं, the child who fall between the age group of 10 to 17 years are considered as adolescents. ठीक है. समझ आया सबको? Who are adolescents? Adolescents are the one who fall in the age group of 10 to 17 years of age, and after you reach 18 years of age, you are not an adolescent, you are an adult. ठीक है. यू बिकम एन एडल्ट. सो अडोलेसेंस में एक मेजर प्रॉब्लम होती है, एक मेजर इशू आता है विच द यूथ फेसेस, और वो उससे निकलना भी चाहते हैं लेकिन दे फेल टू डू सो, और उनके पेरेंट्स भी बड़े परेशान रहते हैं. आज भी आई विल सजेस्ट कि ऑल द पेरेंट्स काइंडली वॉच दिस सेशन विद देयर किड्स. ऑल द पेरेंट्स वॉच दिस सेशन विद देयर किड्स. All the parents kindly watch this session with your kids. It will be very beneficial to each and everybody, and I promise, I assure you about that. All right. I know most of my students are adolescents. I know that. तो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हम सल्यूशन लेके आए हैं. You know what I said, that there is a solution to each and every problem. और पूजा मैम के पास अगर कोई प्रॉब्लम अगर डिस्कस करती है मैम, तो सल्यूशन भी साथ साथ दे देती है. ठीक है. सो आज का प्रॉब्लम है, वी विल डिस्कस अपॉन व्हाट इज पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर पता है क्या होता है सबको? You know what peer pressure is? Anybody knows about it? कि क्या होता है peer pressure? I'm 12 years old. Okay. Does anybody has an idea what is this peer pressure? Peer pressure is something when someone of your age या आपकी क्लास का कोई बच्चा आपको कुछ प्रेशराइज करने में आपके ऊपर कोई डिसीजन सौंप देता है. यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन्स डिसीजन. समवन ऑफ योर एज इज पुशिंग यू टुवर्ड्स डूइंग समथिंग. इट्स पुशिंग यू टू डू समथिंग which is not right. For example, it can be कि suppose one of your friend is telling you कि let's bunk the class today, and what you do, you come under pressure कि मेरी क्लास के या मेरी ट्यूशन के सारे बच्चे बंक कर रहे हैं आज. All of my friends are bunking the class today. और अगर मैंने बंक नहीं किया, so I will be out of the group. If I won't be bunking the class with my fellow mates, I will be thrown out of the group. फ्रेंड्स का ग्रुप होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड आपको कुछ बोल दे कि चलना यार ये वाला काम करते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, लेट्स डू दिस, एंड किसी को पता नहीं चलेगा, लेट्स डू दिस, बड़ा मजा आएगा, लेट्स डू दिस. और वो चीज़ कभी अच्छी चीज़ नहीं होती. इट कैन ब्रिंग नेगेटिव इम्पैक्ट इनटू योर लाइफ. इट कैन ब्रिंग
नेगेटिविटी इनटू लाइफ। किसने कभी ऐसी कभी कोई चीज़ फेस करी है कि आपको फ्रेंड ने कहीं बोला कि चलो घूमने चलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कोई भी शैतानी करते हैं, चल करते हैं ना यार, आज किसी को पता नहीं चलेगा, nobody will get to know, let's do this, and if you won't be doing the activity with us, अगर आप मेरे साथ वो शैतानी नहीं करोगे, मेरा साथ नहीं दोगे, तो कल से तू मेरा दोस्त नहीं है, you are not my friend from this very moment or from tomorrow। किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? किसी के साथ कभी हुआ है ऐसा? किसी के साथ कभी हुआ है ऐसा? हुआ है कभी? Yes ma'am, I faced. Yes ma'am, but not like this. This was just a kind of an example. ये example कभी भी कुछ भी हो सकता है। It can vary from different to different people. आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। It depends upon what kind of friends you have. What kind of friends you have. You know what? Cheating is also a peer pressure. हम जब बड़े होते रहते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हमें बोलते हैं कि हम पढ़ के नहीं आएंगे, हम ना चीटिंग कर लेंगे, विल डू चीटिंग, पढ़ के कोई नहीं आएगा, साथ वाला जो बैठता है ना हम उससे चीटिंग कर लेंगे। और आप भी उसके वर्ड्स पे आने के बाद आप भी ढंग से पढ़ के नहीं जाते, क्योंकि आपको लगता है यार उसने तो बोला था ना कि चीटिंग कर लेंगे, तो चीटिंग तो हो ही जाएगी, तो चीटिंग तो हो ही जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्यों हो जाता है? पीयर प्रेशर इसलिए हो जाता है, सबसे पहले इनसिक्योरिटीज की वजह से होता है। अगर कभी किसी ने पीयर प्रेशर फेस नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव सो मच ऑफ विल पावर कि आपने कभी पीयर प्रेशर फेस किया ही नहीं है। लेकिन ऐसा कभी भी हो सकता है कि किसी भी मोमेंट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कभी ये फेस करना पड़े। ऐसा हो सकता है कि कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये फेस करना पड़े। सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी एज अ टीचर कि अगर मेरे स्टूडेंट्स अगर किसी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो उसका सल्यूशन मुझे अभी से बताना है, तो उसका सल्यूशन मुझे आपको अभी से बता के रखना है कि गलती से भी अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई तो आपके दिमाग में ऐसे क्लिक होना चाहिए, ऐसे कि पूजा मैम ने बताया था ये चीज़ें होती है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि समवन इज पुशिंग अस टू डू something wrong and we are also doing it in terms of pressure। ठीक है, समझ आया सबको? समझ आया सबको या नहीं आया? मैम when your birthday comes, my birthday comes on 10th of September। ठीक है, यस मैम, हुआ है ना? तो इसीलिए आई हैव टू टेल यू दैट यू शुड, आई एम 11 years एंड 7th क्लास। मैं ये बताना चाहूँगी जो एडोलेसेंट की जो भी एज होती है, तो दैट इज़ वेरी क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग दैट what kind of a person you will become when you will go into your adult age। तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि हम लोग पीयर प्रेशर में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हमें सिर्फ नेगेटिव एक्टिविटीज़ करने के लिए ही मोटिवेट करेंगे। ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमारे इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं who always motivate us in doing something very good, and we should always be around such kind of people who always motivate us in doing good activities। ठीक है, अब सपोज आपकी लाइफ में पीयर प्रेशर आ गया, सपोज आपकी लाइफ में एक टाइप ऑफ प्रेशर आने लग गया कि someone is telling me, my friend is telling me
come with us to this vacation. If you will not come with us to this vacation, that we are going to Manali or we are going to Mumbai for our vacation, and if you will not come to us, so you are not my friend. तो you are not my friend. And most of us what we do is, हम अगर हमारे पेरेंट्स हमको अलाउ नहीं कर रहे होते जाने के लिए, तो what we do is हम घर में झगड़ा करने लग जाते हैं. हम घर में झगड़ा करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि उसके मम्मी पापा भी तो भेज रहे हैं ना. Their parents are also sending their kids for the vacation. Why are you not sending me for the vacation? So हम लोग एक घर में मम्मी पापा से एक ऑफेंसिव बिहेवियर, एक रूड बिहेवियर करने लग जाते हैं. बट वी डोंट रियलाइज कि वो हमारा खुद का डिसीजन नहीं है कि मुझे जाना है या नहीं जाना है. कि मुझे जाना है या नहीं जाना है इज नॉट माई ओन पर्सनल डिसीजन. ठीक है, इट्स नॉट माई ओन पर्सनल डिसीजन, बट it's a decision which I am taking in the pressure of my friends. कि मुझे जाना है, नहीं तो ये मेरे से ज़्यादा enjoy करके आएंगे वहाँ पे, and I won't be their friend. I won't be regarded as their friend after they come from the vacation. So that is also a type of peer pressure. ये भी एक type of peer pressure होता है. ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मम्मा मेरे फ्रेंड के पास तो ना वो वाला पेंसिल बॉक्स है. माई फ्रेंड हैज़ दैट काइंड ऑफ बैग एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. एंड वॉट ही सेड टू मी कि फ्रेंड यू डोंट हैव अ वेरी गुड बैग. आई डोंट लाइक योर बैग, बट यू यूज टू लाइक योर बैग अ लॉट. लेकिन आपको अपना बैग तब तक बड़ा अच्छा लगता था जब तक आपके फ्रेंड ने ये नहीं बोला कि मुझे तेरा बैग नहीं पसंद. एंड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट यू ऑल्सो स्टार्ट डिसलाइकिंग योर बैग. दैट इज ऑल्सो अ पीयर प्रेशर. ठीक है, तो अब हमें अगर पीयर प्रेशर आ जाता है, हमें किसी टाइप का पीयर प्रेशर आने लग जाता है, सो हाउ कैन वी रेजिस्ट पीयर प्रेशर. हम कैसे पीयर प्रेशर हटा सकते हैं अपनी लाइफ से. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? सबको समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Yes or no? Good. Good. Yes, ma'am. चंदर क्या रिपीट करना है, आप बताइए क्या पॉइंट रिपीट करना है. मैंने अभी बस ये बताया था कि पीयर प्रेशर एक ऐसा भी एक टाइप ऑफ ऐसा प्रेशर होता है. सपोज आपकी क्लास के बच्चे काफ़ी सारे वेकेशन पे जा रहे हैं और सिर्फ आप नहीं जा पा रहे हैं वेकेशन के लिए, एंड यू स्टार्ट एंड योर फ्रेंड्स स्टार्टेड टू टेल यू कि if you won't be going with us then you are not my friend anymore. I won't like to talk to you. So that is also kind of peer pressure. ठीक है, so अगर कहीं से peer pressure आ जाता है, so what is the solution? peer pressure आ गया कहीं से, what is the solution? How can we dishum the peer pressure? How can we dishum the peer pressure? It's very easy. It's very easy to dishum the peer pressure also. जैसे हमने एंगर को, गुस्से को dishum किया था, जैसे हमने स्ट्रेस को dishum किया है, तो वैसे ही हम आज peer pressure को भी dishum करना सीखेंगे. ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है कि you should change your mindset. That you should change your mindset. अपना माइंडसेट इतना पॉजिटिव रखिए कि nobody's opinion should come in your way of decision. अगर आपका डिसीजन बहुत अच्छा होगा, अगर आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होगा that what do you want from your life, तो कभी भी किसी का कोई ओपिनियन आपको कभी मैटर नहीं करेगा. स्टार्ट एक्टिंग मैच्योरली. मैच्योरिटी से एक्ट करना शुरू कर दीजिए. बचपना मत लाइए अपने अंदर.
ठीक है? सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव अ क्लियर माइंडसेट. सेकंड आता है कि यू शुड ऑलवेज चूज योर फ्रेंड्स वाइजली. अपने फ्रेंड्स बहुत चुन के रखिए. ऐसा नहीं कि कोई भी मिल गया उसे अपना दोस्त बना लिया. आप जिसे जानते भी नहीं है उसे आपने अपना दोस्त बना लिया. नहीं, यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ अ मेंटल एटीट्यूड दैट पर्सन कैन हैव. ठीक है? what kind of attitude your friend can have. So always choose your friend wisely, जो पॉजिटिव हो आपके लिए. ठीक है? ऐसे फ्रेंड्स चूज करिए those who are good for your mental health and are always there to support you in each and every way. ठीक है? उसके बाद आता है learn to say no. लर्न टू से नो. ना बोलना सीख लीजिए. आई नो नो बोलने में ना बहुत प्रॉब्लम आती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो. अगर आपके किसी दोस्त ने बोल दिया लेट्स बंक द क्लास, एवरीबडी इज डूइंग, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके मुंह से भी हाँ निकल जाता है. ठीक है? आपके मुंह से भी हाँ निकल जाता है. सो यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू से नो. ना एक ना 100 सुख. ऐसे एक ना कहावत है कि एक ना 100 सुख. अगर आपने एक बार ना बोल दिया सो वो आपका जो फ्रेंड है ही विल गेट एन आइडिया कि इसको नहीं पूछना क्योंकि ही इज नॉट आर काइंड ऑफ अ पर्सन. इसको बंक करना नहीं पसंद, तो अगर हम इसको पूछेंगे भी तो ये हमेशा नो ही बोल देगा. सो इट्स वर्थलेस टू आस्क द अदर पर्सन and we should always know how to say no. I know it can be difficult in the beginning to say no to your best friend. लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट द पर्सन हु इज योर फ्रेंड इज गुड फॉर यू और नॉट. वो आपको कैसी एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट कर रहा है. क्या वो एक्टिविटी आपके लिए पॉजिटिव है, क्या वो एक्टिविटी आपके लिए नेगेटिव है. ठीक है? सो यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू से नो. समझ आया सबको? समझ आया? राइट? समझ आया सबको? उसके बाद अब आता है कि जब अगर पीयर प्रेशर आ गया, नेगेटिव पीयर प्रेशर आ गया, मतलब नेगेटिव पीयर प्रेशर आ गया कि कल चलो आपके दोस्त ने आपको बोला कि आई एम गोइंग टू बंक द क्लास टुडे, यू ऑल्सो ज्वाइन मी, एंड नोइंगली ड्यू टू पीयर प्रेशर आपने भी उसको ज्वाइन कर लिया क्लास बंक करने में. ठीक है? अब क्या होगा? क्योंकि अगर आपने एक बार उसको हाँ बोल दिया कि लेट्स बंक द क्लास, तो उसके पास एक और बार स्ट्रेंथ आ गई कि नेक्स्ट टाइम अगर वो सोचेगा ना बंक करने की, सो ही विल आस्क यू दैट लेट्स बंक द क्लास टुडे ऑल्सो. आई एम नॉट इन अ मूड टू अटेंड द क्लास, लेट्स बंक इट. आप भी बंक कर लो, मैं भी बंक करता हूँ. लेट्स गो एंड हैंग आउट समवेयर. Let's go to some restaurant and have some good lunch or have some good snacks. Let's go to a PVR and let's watch a movie. So ऐसा आ सकता है. लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको पीयर प्रेशर हो रहा है, your friend is actually motivating you to do the wrong things, so what you have to do is अगली बार अगर वो आपका फ्रेंड आपके पास फिर से प्रपोजल लेके आए to get indulged in a negative activity, straight away say no. नो बोलना सीख लीजिए. चीटिंग करना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए. कभी कभी यहाँ पे एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं. स्टोरी सुननी है?
स्टोरी सुननी है? Everyone wants to listen a story? Okay. So what happened was there was a group of 4 girls. There was a group of 4 girls. There was a group of 4 girls who actually went to a mall. Shopping mall जाते हैं वो लोग घूमने के लिए. वो लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं घूमने के लिए. एंड व्हाट हैपेंड वाज दे वर रोमिंग अराउंड द मॉल. दे वर एंजॉयिंग, दे वर क्लिकिंग पिक्चर्स, दे वर एंजॉयिंग, दे वर मूविंग हेयर, दे वर एंजॉयिंग अ लॉट. एंड सडनली व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल. देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 4-5 पीपल जिन्होंने उनको बुलाया अपने पास. जिन्होंने उनको अपने पास बुलाया और पूछा और बोला कि एक ना वहाँ पे एक डायमंड शॉप होती है. देयर वाज अ गोल्ड शॉप इन द शॉपिंग मॉल. जैसे तनिष्क होता है, राइट? जैसे तनिष्क होता है वैसे ही एक प्योर गोल्ड ज्वेलरी की शॉप होती है, डायमंड ज्वेलरी की शॉप होती है. तो उन ग्रुप ऑफ पीपल ने उनको बुलाया और उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, हमारे लिए काम कर सकते हो. उन्होंने बोला कि हाँ, वो बोलेंगे कि हमारी पिक्चर क्लिक कर दो तो हम पिक्चर क्लिक कर देंगे. उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, व्हाट यू हैव टू डू इज, वो जो सामने ज्वेलरी शॉप है ना, द ज्वेलरी शॉप दैट इज देयर इन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गो देयर एंड ट्राई टू स्टील सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स और सम डायमंड ऑर्नामेंट्स. उन्होंने उनको बोला कि एक काम करो आप, वो जो गोल्ड शॉप है, वो जो डायमंड शॉप है, जस्ट गो देयर एंड वहाँ से प्लीज़ हमारे लिए कुछ चुरा के ले आओ. चाहे वो एक गोल्ड की ईयरिंग हो, चाहे वो गोल्ड का एक पेंडेंट हो, चाहे वो डायमंड का कुछ हो, कुछ भी चुरा के ले आओ. लेकिन व्हाट द गर्ल्स सेड कि नो, वी वोंट बी डूइंग दिस भैया, वी वोंट बी डूइंग दिस दीदी. अगर आपको चुराना है तो आप चुरा लो, लेकिन आपको चुराना तो नहीं चाहिए. लेकिन इफ़ योर वैल्यूज से कि चुराना चाहिए तो आप खुद चुराइए. प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व अस अंडर दिस. लेकिन उन्होंने क्या बोला उन लड़कियों को कि चुरा के आ जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. नोबडी विल गेट टू नो किसने किया. नोबडी विल गेट टू नो हु डिड द स्टीलिंग ऑफ द ज्वेलरी. बट द गर्ल्स वैल्यू, बट द लड़कियों की जो वैल्यू थी, the value system of the girls was so strong that they denied that no, we won't be doing this and we will advise you that you should also not do this. And they walked away. And they walked away from there. And पता है क्या हुआ उसके बाद? आगे चलने के जब वो आगे चले गए ना, those 4 girls hugged each other. Those 4 girls hugged each other that we have such a good value system कि हमने पीयर प्रेशर को डिशूम कर दिया, कि हमने पीयर प्रेशर को डिशूम कर दिया. वी हैव सच अ गुड वैल्यू सिस्टम एंड वी नो हाउ टू मैनेज पीयर प्रेशर. उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो यही हो रहा था कि वो जो 4-5 भैया दीदी थे, दे वर टेलिंग मोर पीपल कि चुरा के ले आओ. दे वर ओनली देयर टू स्प्रेड नेगेटिविटी, दे वर नॉट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी. राइट? अच्छी लगी स्टोरी? क्या सीखा स्टोरी से? कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, वी शुड नेवर बी अ विक्टिम ऑफ पीयर प्रेशर. अगर आ जाए और अगर आपने उसको डिशूम कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप उसको अच्छे से थ्रो ऑफ कर देंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि I have such good values that I know how to handle my pressure. ठीक है? समझ आया सबको? समझ आया सबको? अब उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि अब अगर आपने मना कर दिया अपने किसी फ्रेंड को कि दैट आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी, मैं पीयर प्रेशर का पार्ट नहीं बनूंगा. अगर आपको मुझसे दोस्ती नहीं करनी तो कोई बात नहीं, बट इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड. एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज यू बिकम अ विक्टिम ऑफ लोनलीनेस. आपको
ऐसा लगने लगेगा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है. आई एम अलोन इन दिस स्कूल. आई एम अलोन इन दिस स्कूल. नोबडी वांट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ माइन. इसलिए क्योंकि मैं सबको मना कर देता हूँ या कर देती हूँ किसी भी गलत एक्टिविटी का पार्ट बनने में, है ना. तो हम लोनली फील करने लग जाते हैं. हम लोग लोनली फील करने लग जाते हैं. लोनली फील करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है. यू फील कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है. आई एम सो लोनली. नोबडी वांट्स टू टॉक टू मी. सो दैट इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ लोनलीनेस. आपने पीयर प्रेशर को मना कर दिया, अपने फ्रेंड को मना कर दिया कि आज मैं बंक नहीं करूँगा. ठीक है, आपके फ्रेंड ने बोला आपको कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बंक मत करो, बट यू वोंट बी माई फ्रेंड फ्रॉम नाउ. तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि यू स्टार्ट फीलिंग लोनली फ्रॉम द नेक्स्ट डे, क्योंकि आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है स्कूल में. एंड व्हाट हैपन्स इज कि आप प्रेशर लेने लग जाते हैं इस चीज़ का भी कि आई एम वेरी लोनली. तो अब लोनलीनेस को अब हम कैसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं? लोनलीनेस को पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हो? अगर आप लोनली फील कर भी रहे हैं, कोई बात नहीं. अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं है, तो कोई बात नहीं. हम लोग ये भी बताएंगे कि पॉजिटिव वे में लोनलीनेस को भी कैसे पॉजिटिविटी से देखा जा सकता है. तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि पहले एक्सेप्ट कर लो कि कोई बात नहीं, मैं लोनली हूँ तो क्या हो गया. इट डजंट मैटर इफ आई एम लोनली. इट डजंट मैटर अगर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है. इट डजंट मैटर कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है. इट्स ओके. एक्सेप्ट कि इट्स फाइन. एक्सेप्ट कि इट्स फाइन टू बी लोनली. आई एम लोनली एंड आई एम इट्स गुड. इट्स ट्रू. कोई बात नहीं अगर मैं लोनली हूँ, सो इट्स ओके विद मी. ट्राई टू एक्सेप्ट योरसेल्फ जस्ट द वे यू आर. कोई बात नहीं कर रहा तो मैं तो हूँ खुद के लिए. माई पेरेंट्स आर देयर फॉर मी and I know whatever will happen, my parents are always with me, right? So accept कर लीजिए कि you are lonely. Become more active. अगर आपको लगने लग जाए कि आप lonely हैं तो कोई बात नहीं, क्या हो गया. Try to engage yourself in more and more activities. जब आपको थोड़ा बहुत लगने लगे कि I am lonely, then what you can do is you can start to dance, you can start to sing, you can start to draw. ठीक है, become more active. You can also spend your time with your parents. And you will see कि जितना टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताएंगे, you will only learn something new because your parents are always there to support you. Spend time with animals. अगर आपके पास कोई पेट है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाइए. अगर आपका कोई सिबलिंग है उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाइए. ठीक है. Study is most important. Start giving more importance to your study. Friends जितना काम नहीं आएंगे जितना पढ़ाई आएगी. Always remember this. ठीक है. अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाइए. ये मत कहिए अपने आप से कि मुझसे तो कोई बात करना ही नहीं चाहता. Nobody wants to talk to me. लेकिन in spite of that, start saying that I am a very wonderful person and I am costly. मुझे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. मैं इतना हाई लेवल स्टैंडर्ड का इंसान हूँ, मुझे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. Someone has to reach a standard of mine so that मैं उसका दोस्त बन सकूँ. समझ आई ये वाली बात? समझ आई ये वाली बात. एंड ये वाला पॉइंट एक लास्ट पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोनलीनेस को हटाने में. दैट इज always have trust in God's power. हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, आजकल मैंने देखा है बच्चों को कि
भगवान जी पे ट्रस्ट नहीं होता, भगवान जी पे ट्रस्ट नहीं होता। हम बच्चों पता नहीं ऐसे क्यों एक इमेज बना लेते हैं कि भगवान जी तो है ही नहीं, भगवान जी तो है ही नहीं, ऐसा कोई होता ही नहीं है जिसकी हमको पूजा करनी चाहिए, जिसकी हमको पूजा करनी चाहिए। लेकिन वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट देयर इज अ पावर अबव अस, देयर इज अ पावर अबव अस, जो जिन्होंने पूरी अर्थ बनाई है। अर्थ किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाई, वो एक पावर ने बनाई है। एंड गॉड इज नथिंग बट अ डिवाइन पावर, जिस पे हमको हमेशा हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर भगवान जी ने हमारी लाइफ से दोस्त निकाल भी दिए, अगर भगवान जी ने हमारी लाइफ से दोस्त निकाल भी दिए तो कोई अच्छी बात ही होगी, तो कोई अच्छी बात ही होगी कि भगवान जी ने हमारी लाइफ से दोस्त हटा दिए। समझ आया सबको? रोज सुबह मॉर्निंग में नहाने के बाद चाहे 5 मिनट भगवान जी के पास जाके खड़े हुआ करो कि भगवान जी थैंक यू भगवान जी कि आज मैं फिर से मैंने आज का दिन देखा, फिर से आज मैंने सन को देखा, मेरी नींद बहुत अच्छी हुई। थैंक यू सो मच भगवान जी कि आज मैं सांस ले पा रहा हूँ या पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। बस 5 मिनट के लिए भगवान जी के पास सिर्फ यही बोलने चले जाया करो कि थैंक यू भगवान जी को और कुछ नहीं चाहिए होता। लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं अगर हम ये चीज़ फॉलो नहीं करते, भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं हम ये चीज़ फॉलो नहीं करते। लेकिन भगवान जी सबसे बहुत प्यार करते हैं, भगवान जी सबसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर हम उनके लिए सिर्फ 5 मिनट निकाल लेंगे, सो देयर इज़ अ वेरी वंडरफुल सेइंग दैट इफ़ यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड, if you take one step towards God is always ready to take 100 steps towards you। समझ आया सबको? पीयर प्रेशर को मैनेज करना, दोस्ती में प्रेशर को मैनेज करना कि मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे यार, कोई बात नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। से टू योरसेल्फ दैट I am a luxurious person, I have high standards and till the time जब तक ऐसा इंसान मेरे सामने नहीं आता who has the same high standards just as me, I cannot befriend anyone. I cannot befriend anyone. I have high standards. ठीक है? Always have trust in God. Learn to say no. समझ आया सबको? मिस्ट्री बॉक्स की तरफ चले आज। एक और स्टोरी थी। स्टोरी ये थी कि एक बार एक बच्चा एक नए स्कूल में जाता है एक बच्चा। एंड व्हाट हैपन्स इज वहाँ पे वो अपने न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहता है। तो जब तक लंच ब्रेक से पहले ही मेड 4-5 फ्रेंड्स। लंच ब्रेक से पहले ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ही मेड 4-5 फ्रेंड्स। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि उन सब ने लंच साथ में किया। लेकिन लंच करते करते उन बच्चों ने बोला कि हम लोग ना स्कूल ख़त्म होने के बाद स्कूल के पीछे मिलते हैं। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो हम स्कूल के पीछे मिलते हैं। तो क्या हुआ, स्कूल की छुट्टी हुई, वो जो नया बच्चा था वो स्कूल के पीछे गया देखने के लिए कि क्या है, मेरे फ्रेंड्स क्यों वहाँ पे जाते हैं। एंड व्हाट ही सॉ वाज दे वर प्लानिंग कि कल हम सब घर से स्कूल के लिए तो निकलेंगे लेकिन स्कूल आएंगे ही नहीं। हम लोग घर से स्कूल के लिए निकलेंगे लेकिन स्कूल आएंगे ही नहीं। वी विल बंक एंड गो टू वॉच अ movie, but the child was very disciplined. And you know what he said? He said कि I am very disciplined and I know what is the importance of having a good school and having an access to knowledge.
अगर मैं आपको भी एडवाइस करूंगा, प्लीज़ स्कूल बंक करके मत जाओ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती है। मैं तो आऊँगा एंड मैं आपका दोस्त भी नहीं बनना चाहता, मैं आपका दोस्त भी नहीं बनना चाहता। एंड यू नो व्हाट हैपेंड व्हेन ही वॉकड अवे फ्रॉम देयर, व्हाट हैपेंड वाज he started feeling very positive about his personality, that he can overcome any of the peer pressure. समझ आया सबको? समझ आया सबको? Everybody got to know what I am trying to say? So आज के मिस्ट्री बॉक्स की तरफ चले, आज के मिस्ट्री बॉक्स की तरफ चले। हाँ, आज का मिस्ट्री बॉक्स आज के मिस्ट्री बॉक्स के टॉपिक का नाम है लेट्स हैव अ स्मॉल टॉक। लेट्स हैव अ स्मॉल टॉक। आज के मिस्ट्री बॉक्स का नाम है लेट्स हैव अ स्मॉल टॉक। आज आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के या समर कैंप के 7 डेज कंप्लीट हो गए हैं, है ना? आज आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के और समर कैंप के 7 डेज कंप्लीट हो गए हैं। और मैं एज अ टीचर ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ने कितना चेंज लाया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास की वजह से कितना चेंज आया है आप सबकी लाइफ में। एज अ टीचर आई वांट टू नो। ठीक है, सबको समझ आया? तो आज का मिस्ट्री बॉक्स ये है, आप और आपके पेरेंट्स, आप और आपके पेरेंट्स आज एक 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे। आप और आपके पेरेंट्स आज एक 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे। उन 5 क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। उन 5 क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। एंड टेक इट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस मिस्ट्री बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मिस्ट्री बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट videos of each and every student who is watching my personality development class. I want the videos of each and every student who is watching my personality development class. ठीक है, आप लोग एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है, the first question is, do you watch the personality development class with your parents? ठीक है, सपोज आपने फ़ोन से वीडियो बनानी है, तो अगर आपके घर में आप और आपके मम्मी पापा ही रहते हैं सिर्फ, अगर ठीक है आप और आपके मम्मी पापा ही सिर्फ रहते हैं, तो आपने फ़ोन कहीं रख दिया है और उससे फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई और है तो आप उसकी हेल्प ले लीजिए, मम्मी पापा और आप वीडियो बनाएंगे जिसमें आप और आपके मम्मी पापा या आप आपकी मम्मा या आप आपके पापा या तीनों मिलके इन चीज़ों के आंसर देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू वॉच योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास विद योर पेरेंट्स? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट चेंजेस कैन यू फील इन योर एटीट्यूड बाय वॉचिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास, एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट, एंड व्हाट चेंजेस पेरेंट फील इन देयर चाइल्ड सिंस द टाइम दे आर वॉचिंग द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का जितने भी 5 क्वेश्चन हैं, इस सेशन के बाद फेसबुक के रावल डिजिटल मंच के फेसबुक पेज पे इसकी फोटो अपलोड हो जाएगी। जब आप वीडियो बना रहे होंगे तो एक बार उन क्वेश्चंस को फिर से पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू यू थिंक द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास इज इम्पोर्टेंट? Why do you think the personality development class is important? Third question. Fourth question आएगा कि do you like the activities given in the mystery box every day, and which is your favorite activity till now?
फोर्थ क्वेश्चन आएगा, डू यू लाइक द एक्टिविटीज विच आर गिवन इन द मिस्ट्री बॉक्स एंड विच इज योर फेवरेट मिस्ट्री बॉक्स अभी तक? ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट समर कैंप टिल नाउ, व्हाट आर योर फीडबैक टुवर्ड्स द समर कैंप राइट नाउ। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छाई ही करनी है, अगर आपको मेरी बुराई भी दिखती है, अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बुराई भी दिखती है तो कोई बात नहीं, बी फ्री टू शेयर योर बुराई ऑल्सो, बी फ्री टू शेयर योर बुराई ऑल्सो। और प्लीज टेक इट ऑन अ वेरी सीरियस नोट। पूजा मैम कभी भी सीरियस नहीं होती है पढ़ाते टाइम, लेकिन आज सीरियस हो रही है इसके लिए क्योंकि मैं अगर और भी अभी 5 डेज की क्लास और रहती है और मैंने बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए प्लान करी हुई है, मैंने बहुत अच्छी चीज़ें प्लान करी हुई है, लेकिन अगर मैं वो चीज़ ऐसे ही दे दूँ और मुझे ये नहीं पता हो कि बच्चों का रिस्पांस क्या है क्लास को लेके, पेरेंट्स का रिस्पांस क्या है क्लास को लेके, तो मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना ऐसे जज करना, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना ऐसे जज करना। आप अभी इसको वीडियो को बनाने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे क्योंकि क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, 5 से 10 मिनट लगेंगे वीडियो बनाने में। ये वीडियो आपको शेयर करनी है जो रजिस्टर्ड नंबर है व्हाट्सएप का, रावल डिजिटल मंच का, जहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर कराया था, वहीं पे आपको अपनी ये वीडियो शेयर करनी है, वहीं पे आपको अपनी ये वीडियो शेयर करनी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि 36 बच्चे देख रहे हैं अभी, 36 बच्चों की कल सुबह 10 बजे तक मेरे पास वीडियोस आ जानी चाहिए, कल सुबह 10 बजे तक मेरे पास वीडियोस आ जानी चाहिए। और अगर नहीं आई तो मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है, फिर वो सरप्राइज मैं हटा दूंगी। और पूजा दीदी झूठ भी नहीं बोलती, अगर मैं बोलती हूँ कि मिस्ट्री बॉक्स अच्छा होता है तो वो अच्छा होता है ना, तो वो अच्छा होता है ना। अगर मैं बोलती हूँ आज के सेशन का टॉपिक अच्छा है तो वो अच्छा होता है ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ मैंने आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रखा है, अगर मेरे पास कल सुबह 10 बजे तक सबकी वीडियोस नहीं आए तो वो मैं सरप्राइज कैंसिल कर दूंगी। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया था तो कोई बात नहीं, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया था तो कोई बात नहीं। जितने भी पोस्टर्स रावल डिजिटल मंच के फेसबुक पेज पे अपलोड होते हैं उनके नीचे एक नंबर लिखा होता है, या तो आप उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो रावल डिजिटल मंच के मैसेंजर पे वो वीडियो फॉरवर्ड कर देना, या तो रावल डिजिटल मंच के फेसबुक के मैसेंजर पे फॉरवर्ड कर देना अगर आपके पास नंबर नहीं है। ठीक है, please, I know everybody of you will send the video and I'm actually looking forward to the lovely suggestions, to the lovely videos of each and every student of mine. Kindly share your video, ठीक है। कल सुबह 10 बजे तक, कल सुबह 10 बजे की डेडलाइन है सबके पास, कल सुबह 10 बजे की डेडलाइन है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि दीदी ने पूजा मैम ने जो टाइम मैनेजमेंट सिखाया था आप लोगों को, पूजा दीदी ने जो टाइम मैनेजमेंट सिखाया था आपको, वो कितना काम आया है और आपने कितना अप्लाई किया है। ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। अगर आप लोग कुछ नहीं सीख रहे, इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट, yes, it is important to send video, it is very important to send video, it is very important to send video, बहुत important है वीडियो सेंड करना। to be very honest, अगर आप वीडियो सेंड नहीं करेंगे तो बस वो तो पे मैं छोड़ रही हूँ। आज की शैतानी मैं नहीं बताऊंगी, आज की शैतानी कल के लिए ड्यू है। कल मेरे सारे बच्चे, कल मेरे सारे स्टूडेंट्स अगर अच्छे से अपनी वीडियो सेंड करेंगे तभी शैतानी बताई जाएगी, तभी सरप्राइज दिया जाएगा, सब कुछ कल ही होगा। लेकिन उससे पहले एवरीबडी हैज़ टू पे समथिंग इन रिटर्न ऑफ
रिसीविंग समथिंग। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको मैम को भी कुछ देना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट एक छोटी सी वीडियो, वो 5 क्वेश्चंस के आंसर्स की वीडियो। वो क्वेश्चंस अभी अपलोड हो जाएंगे रावल डिजिटल मंच के फेसबुक पेज पे जैसे ही मेरा लाइव खत्म होगा, ठीक है। अगर आप आज भेज देंगे तो आज अच्छी बात है, नहीं तो कल सुबह 10 बजे तक मुझे वो वीडियोस चाहिए, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट, छुट्टी करें आज की। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। कल मिलते हैं शाम को 4 बजे विद अनदर लेसन ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, ठीक है। ऑल राइट, बाय एवरीवन, टेक केयर।